दुनिया को दहलाने वाला लाइव मर्डर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली नोटबंदी पर कुछ बोल रहे हैं। बैंक से सामने जो भीड़ थी उसको टैकल करना, सबको सेटिस्फाई करना उन्होंने किया है। अब इसमें से कुछ ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को मिसकंडक्ट किया, और ऑब्वियसली हैं भी, और इसलिए हमारे जितनी कानूनी एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेटिंग, वो उनके खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई हैं। सीबीआई इसको देख रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको देख रहा है, और बैंक के अधिकारियों को भी, टॉप मैनेजमेंट को हम लोगों ने कहा है कि वो भी इस पे कार्रवाई करें। आज बैंकर्स के साथ हमारी मीटिंग थी, चाहे बजट की तैयारी के संबंध में थी, और जिस बैंक का बार बार नाम आया एक्सिस बैंक, उसकी चेयरपर्सन ने पूरी डिटेल दिए हैं कि बैंक ने भी अपने ऑफिसर्स को, कईयों को आइडेंटिफाई किया है जिनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी, और ट्रांजिएंट पीरियड में उनको सस्पेंड भी कर दिया है जिनके बारे में उनको शक था। इवन एक्सिस बैंक हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। सर, ओल्ड करेंसी का कुछ डेटा मिल सकता है कि कितनी आ चुकी है? देखिए, मैं इसलिए जब एक्यूरेट करेंसी का डेटा 30 तारीख के बाद आपको मिल जाएगा। You'll wait when we take a decision, we'll announce that. I'm not going to. मैंने ऑलरेडी रात को उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया है। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स started talking about higher income tax limits and change in slabs. So it will go up to say 4 lakh. Well, just whenever we decide, we'll let you know. Sir, the issue of digital payments, this is an incentive to traders, for traders to move to digital payments. Do we have any data on the jump that we've seen from? Oh, there's a huge, I'll tell you, that data is today available. We can separately give it to you. We've been giving it to various, at various stages. The use of all parallel and alternative means of digital payments, that is, the credit card and debit card user has increased significantly. The amounts have increased significantly. The e-wallets have increased significantly. The Aadhaar-based enabled systems, which yesterday we've discussed, are also moving ahead. And one after the other, in industry after industry, the mode of payment is increasing. In fact, if you see the exact data which is available, in all cases the increase in most of these users is 300% and 400%, and where the base was small, it's even 1500% and 2000%. That's the significant increase. So it depends on the size of the base itself. देखिए, today there are no exemptions. As long as there were exemptions, people were getting old currency. Because you could get old currency at the petrol pump, you could get old currency at medicine stores, you could get old currency for railway tickets, etc. Therefore, the idea is that up to 30th, everybody can deposit his old currency. Now there is no scope further for earning old currency because all exemptions have been phased out. So whoever has got old currency must go and deposit it in one go. You see, please. Therefore, if somebody goes every day and deposits old currency, the same person, what suspicion does it raise? How is he getting it every day? Today there is no, as long as the exemptions existed, I'm sure when you raise this question, your object is not to assist those who are indulging in money laundering. So as long as there were exemptions, there was a scope for getting old currency, so people could deposit it every day. But once the exemptions have been lifted, now if you have old currency, go and deposit in one go. So if you are going to deposit it every day, does it not raise a doubt in your mind? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जब से डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर के बढ़ावा हुआ है, लेकिन उसपे कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि सर चार्ज उस पे लग रहा है, 2% ज्यादा लग रहा है सर चार्ज। ऐसा है, देखिए, क्रेडिट कार्ड अलग चीज है,
क्रेडिट कार्ड समाज के एक वर्ग यूज करते हैं कि जो 30 दिन का क्रेडिट भी अवेल करते हैं, इसलिए उसका कॉस्टिंग अलग होता है। जहां तक डेबिट कार्ड्स और दूसरे कार्ड्स हैं, उसके ऊपर सरकार ने 31 तारीख तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद भी जो नया रेट भी अनाउंस किया है 1,000 रुपए तक और 2,000 रुपए तक, उसको 0.25 और 0.5 किया है। Also farm loan waiver on the cards, everybody is writing about it. So would you like to say anything? Well, I am not going to speculate on every issue that appears in a comment. Sir, how much tax windfall are you looking at from ideas to? I am not. Has demonetization affected in any way the first tranche of tax that was to be received from IDS 1 on September 30th? No, I don't think that has anything to do with demonetization. सर, क्या सभी एटीएम्स को रिकैलिब्रेट किया जा चुका है? अभी भी ज्यादातर एटीएम से सिर्फ 2,000 के ही नोट निकल कर नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। पिछले कई दिनों से 500 रुपए के और लोअर करेंसी के नोट। अब क्या है कि जो लीगली टेंडरेबल करेंसी है वो रिसर्कुलेशन में आई है, और इसलिए जो 500 के नोट नए वाले आए हैं, उसके अलावा जो 100 रुपए और नीचे वाले नोट भी हैं, वो भी अब बैंक्स के पास वापस आने शुरू हुए हैं रिकर्कुलेशन में, और एटीएम्स को उनसे भी दिन में बार बार भरा जा रहा है। सर, रोहर वाड्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार कब तक आम लोगों पे प्रयोग करती रहेगी नोटबंदी? आई डोंट थिंक ही नीड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर, एक बात ये भी है कि जितना सर्कुलेशन में था कैश उससे ज्यादा आ रहा, तो इफ यू कैन डिनाई दिस कि जितना सर्कुलेशन में कैश था 15.44 उससे भी ज्यादा। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेक्यूलेट, यू हैव द लिबर्टी टू सर, स्पेक्यूलेट। इनकम टैक्स ब्लैक मनी info@incometax.gov.in वेबसाइट ईमेल आईडी शुरू किया गया था। क्या रिस्पांस रहा है अभी तक का? कोई फिगर आया या कोई बड़ा? देखिए, उसके ऊपर जो कार्रवाई टैक्स डिपार्टमेंट को करनी होगी, उस जो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी देखते हुए वो करेंगे। Sir, on the issue of digital payments, again, if I can come back, that apparently there are problems with USSD and UPI. Has the ministry also got this kind of a feedback that, you know, interoperability is also? Yes, this is one of the issues, and yesterday in the meeting that we had, we did realize that this is one of the key issues, and therefore, in the long term, the banking system, as it makes advances, will have to find an answer to this. Sir, so while we are encouraging digital payments, do you think we can have a sharper restrictions on the usage of cash? And second, this 2% incentive that you're offering traders, is this only for this year or are we going to? No, this is for the current year, because the taxation policy is always announced for this year. You don't announce a permanent taxation policy. So about this incentive to cash, do you think we need sharper restrictions? Well, we'll keep your suggestion in mind. सर, थोड़ी जानकारी सर कि 8 नवंबर के पहले के 500 रुपए के नोट छापे गए थे। 500 के नोट भी छपने शुरू हो गए थे या सिर्फ 2001 नोट? Yes, I'm told it had been started. मैंने पहले भी आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 8 नवंबर पहले से 2000। I think you have now run out of questions, so you haven't. Thank you. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स यहां पर किए। 2 करोड़ तक टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को 8 की जगह 6% जिनकी अनुमानित आय मानी जाएगी, 2% का यहां पर उन्हें फायदा दिया गया है। डिजिटल पेमेंट पर कारोबारियों को 2% की छूट दी गई है। ये छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत है। इनकम टैक्स स्लैब पर सही वक्त पर फैसला करेंगे। फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि इस तरह की बातें भी खबरें सामने आ रही थी कि इनकम टैक्स में बदलाव कर दिया जाएगा। तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है और उस बढ़ावा देने का असर हुआ है। ई वॉलेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। जेटली ने कहा कि कैशलेस कारोबार पर 2% आपको अब कम टैक्स देना होगा। तो ई वॉलेट के इस्तेमाल में तेजी की बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही, और यह भी कहा कि अब आपको सिर्फ एक बार में आपके जो पुराने नोट हैं उन्हें जमा करवाना होगा, और ये बैंक्स की सहूलियत को देखते हुए किया गया है, लाइन कम करने को देखते हुए किया गया है। उसके बाद हालांकि 31 मार्च तक आप आरबीआई में भी अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, लेकिन आप 30 दिसंबर तक ये पैसा जमा करवा दें। लेकिन छोटे कारोबारियों पर थोड़ी सी राहत देते हुए उनको 2% की छूट दी गई है टैक्स में। ई वॉलेट और कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाले व्यापारियों को भी इस छूट का लाभ मिलेगा। 8 की जगह 6% मानी जाएगी उनकी आय।